Hope you are getting the screen. आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी. एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम फटाफट से अपने aws.amazon.com/console पेज पे जाता हूँ मैं और साइन इन करता हूँ अपने अकाउंट से. तो आई एम साइनिंग इन विद माय रूट यूजर अकाउंट और आप अपने कॉलेज के अकाउंट के थ्रू ही लॉग इन करिएगा. तो आई एम लॉग्ड इन टू द अकाउंट. मैनेजमेंट कंसोल पेज पर मैं पहुंच गया हूँ. अब हमें क्या करना है, वी नीड टू गो टू द EC2 इंस्टेंस. ठीक, क्योंकि EC2 के अंदर ही बेसिकली मेरे पास ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स हैं. ऑटो स्केलिंग मुझे इंस्टेंस की करनी है, EC2 इंस्टेंस की करनी है, इसलिए मुझे EC2 इंस्टेंस पर जाना पड़ेगा. ठीक है, तो यू कैन सी दैट अंडर EC2 डैशबोर्ड वी हैव इंस्टेंसेस, वी हैव इमेजेस, वी हैव इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, we have network and security category. Under that we also have a load balancing and auto scaling. So load balancers हम लोग already discuss कर चुके हैं. Now we are going to discuss about the auto scaling part. ठीक, तो the very first thing that we will do is to launch the instance. So सबसे पहले हम एक instance को launch करेंगे. So let me click on launch instances first. And after that मैं इसका कोई नाम choose करूँगा. तो for example मैं इसका नाम choose कर लेता हूँ server 1. सर्वर 1 मैं इसका नाम चूज कर लेता हूँ. ठीक है, एंड एप्लीकेशन एंड OS इमेज, जो कि मशीन इमेज मेरे को चूज करनी है. मैं एक विंडोज सिस्टम चूज करता हूँ. ठीक है, अपने सिंप्लिसिटी के लिए अमेजॉन मशीन इमेज को मैंने विंडोज सिस्टम चूज करा है. और बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022 बेस इज सिलेक्टेड, सो लेट इट बी लाइक दैट. आफ्टर दैट वी नीड टू सिलेक्ट इंस्टेंस टाइप, and since it is freely available, I am choosing T2.micro. The family is T2, one virtual core of CPU and 1 GB of RAM I will be getting with this instance. The next thing is I need to choose a key pair. So yesterday we have launched with the S1 key pair. हमारे पास एक S1 key pair already है, so we have used this particular S1 key pair. Next thing is we need to change the network settings. तो network settings में हमें क्या करना है, हमें एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से कनेक्ट करना है. दैट इज VPC ID बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड है इस नेटवर्क के साथ, इस सिस्टम के साथ. एंड देन वी नीड टू चूज द सबनेट. तो सबनेट हम अपनी प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, लेट्स Amazon चूज द सबनेट फॉर मी. ठीक है, एंड द ऑटो साइन पब्लिक IP मैंने इनेबल कर रखा है, ये बाय डिफॉल्ट है. इफ यू वांट टू चेंज द सेटिंग्स यू कैन गो टू द एडिट सेक्शन एंड यू कैन चेंज द network, subnets and auto sign public IP and other things as well. Next thing is the firewall. So security group की firewall को create करने के लिए what I am doing is I am creating a new security group or I can choose an existing security group. आप देखोगे यहाँ पर मैं एक security group को create कर रहा हूँ and that will be created using the launch wizard 9 name. launch wizard 9 नाम से एक security group अभी इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए क्रिएट हो रहा है, जिसमें मैंने RDP ट्रैफिक को अलाउ करा है फ्रॉम एनीवेयर. If I want to allow HTTPS or HTTP traffic, then also I can click on these checkboxes provided. Next thing is the storage. तो storage 30 GB मेरे को फ्री मिलती है and I'm not going to use more than that, तो मैं 30 GB ही चूज कर लेता हूँ. If I want to minimize the storage, then obviously I can minimize or obviously I can maximize it. But demo के purpose के लिए हमारे लिए 30 GB storage sufficient है, so we are doing the 30 GB space only. ठीक है. Next thing is the advanced details. If you want to know more about the advanced details, you can get into that. Otherwise हमें यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है. So just we are clicking on the launch instance. So whenever we click on launch instance, you can see कि after 2-3 seconds, it says successfully initiated launch of instance, है ना? And the instance ID is created. If you click on the instance ID, you will be able to get the details associated with the instance that you have launched. So you can see the server 1 name instance has been launched with the instance ID this one, and it is in the pending state. The type of the instance is T2.micro. And we have the availability zone, that is AP South 1A.
whose public IPv4 DNS is this one. Okay, and if you want to know the public IP address, then it is 43.205.231.167. And we have disabled the monitoring. The security group is launch wizard 9. Key name that we have chosen to log into the system is S1, and we have launched it at 2:13 on today. Okay, 21st of December we have launched. So you can see that it is in the running state now. एक बार इसको refresh कर लेते हैं so that we can get the status check. Initializing आ रहा है अभी. After some time it will be 2x2 check passed. ठीक है. So when let me try to connect to this instance. Server 1 से connect कर लेते हैं. ठीक है. Server 1 से connect करते हैं. RDP client को download कर लेते हैं. So just click on download remote desktop file, and you need to click on get password. Get password के लिए you need to upload the private key file with the name of s1.pam. So let's go to the download folder where we have the file. Key pair वाली file हमारे पास है download folder के अंदर. We have provided the file, and you can see it is showing this is the password. And if you want to decrypt the password, then you will be able to get the password of the system. So this is the password. Just copy it and try to open the instance. तो इसको open करते हैं, connect करते हैं, and using the password that we have decrypted, we'll try to log into the system. Okay. All right. So we have connected to the system. I'm sorry, guys. So system initialize हो रहा है. It won't take more than 2 minutes. Huh? All right, so it is launched now, and after some time you will be able to see कि इसके साथ associated जो IP addresses हैं और details हैं वो सारी सारी top right corner पे visible होने लगेंगी. ठीक है. Let's wait till the time the system shows the details. Here we go. The details are visible now. You can see that the details of the system is t2.micro in the availability zone AP South 1A, and the IP address is 43.205.231.167. After that, what we need to do is we need to go to the internet section. और यहाँ पर हम एक काम करते हैं. We can try to download some softwares, or we can try to download some images. एक बार कोई भी इमेज या कोई भी सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं. ठीक है. Just a second, guys. All right, guys. So go with the start without your data. Continue without this data and confirm. We can download some images, or
ओके, इट इज स्लाइटली स्लो बिकॉज 1 GB का रैम है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोसेसर हम रन कराते हैं, तो है ना, थोड़ा स्लो चलेगा, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, वी नीड टू बियर विद दैट। बल्कि एक काम करते हैं, इसको हम बंद ही कर देते हैं। वी ट्राई टू क्रिएट अ न्यू फाइल, एक फाइल बना लेते हैं और उस फाइल का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नाम रख दिया है हमने इसमें, ठीक है। और इसमें हमारा सिस्टम डिटेल्स है वो ये है, नाम है सर्वर 1 और पब्लिक आईपी कितना है, पब्लिक आईपी है 43.205.231.167, ठीक है। और हमारा अवेलेबिलिटी जोन है 1A, ठीक। अब इसको कर देते हैं हम सेव। ये सेव हो गया है मेरा। इस सिस्टम में मैंने एक छोटा सा चेंज करा है, आई हैव क्रिएटेड अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद द नेम ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नाम से मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसके अंदर मैंने ये 3-4 चीजें ऐड कर दी हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द रेफरेंस। अब मैं इस सिस्टम को कर देता हूँ मिनिमाइज एंड आई विल गेट बैक टू दिस इंस्टेंस वंस अगेन। अब मैं चलता हूँ सीधे सीधे इंस्टेंस पेज पर, एंड देयर यू विल बी एबल टू सी कि सर्वर 1 इज रनिंग एंड द 2x2 स्टेटस चेक पास्ट ये शो कर रहा है मेरे को। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, yes, Himanshu Agarwal want to ask something. Yes, please, Himanshu. Mistakenly raised your hand, Himanshu. Okay, okay. So what are we going to do now is we are trying to create an image, because when we launch the ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स, है ना, ऑटो स्केलिंग अगर हम अपने सिस्टम की करेंगे तो हमें एक Amazon मशीन इमेज चाहिए होगी अपने सिस्टम की, एंड सिंस वी आर एक्चुअली गोइंग टू लॉन्च द एग्जैक्ट सेम इंस्टेंस, एग्जैक्ट सेम सिस्टम, तो जो अभी मैंने एक सिस्टम आपके सामने क्रिएट करा, बिल्कुल वैसा ही सेम सिस्टम मेरे को एक दूसरा लॉन्च करके देगा, ठीक है। और वो कौन करेगा, वो करेगा ऑटो स्केलिंग, ठीक है, Amazon की एक सर्विस। तो बेसिकली मुझे उस सिस्टम की जो अभी मैंने रनिंग मोड में है उसकी एक इमेज बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू क्रिएट एन इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज और इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोसेस टू क्रिएट एन इमेज, जस्ट कनेक्ट with the server, just click on this particular checkbox और यहाँ पे you need to go to the actions tab. Actions के अंदर you can see there is an option that is named as image and templates. You need to click on that, and after that you need to click on image, create image, ठीक है। So you have 3 options: create image, create template from instance, and launch mode like this. So just you need to click on create image. So just click on create image, and the very first thing that it is asking कि आपको उस इमेज का नाम क्या रखना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सर्वर 1 की इमेज, ठीक है। तो मैंने नाम रखा इसका सर्वर 1 इमेज, एंड इट इज नथिंग बट द इमेज ऑफ सर्वर 1 की इमेज, ये डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज नो रीबूट, एंड इफ यू वांट टू इनेबल इट then obviously you will not be able to reboot the system by yourself. वो सिस्टम अगर खुद से रीबूट होगा तब होगा, अदरवाइज मैं उसको खुद से रीबूट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस ऑप्शन को हम तब प्रेफर करते हैं जब हम एक बहुत क्रिटिकल इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं, और चूंकि हमारा अभी क्रिटिकल इंस्टेंस नहीं है, वी आर लॉन्चिंग विद ओनली 1 GB ऑफ रैम, तो ऑब्वियसली हमारा सिस्टम कंपैरेटिवली छोटा भी रहेगा, ठीक है। सो और कम प्रोसेस करने के लिए भी एलिजिबल रहेगा, तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको इनेबल नहीं करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज वॉल्यूम टाइप, और आप देख सकते हो वॉल्यूम टाइप में इट इज शोइंग कि जो मेरा इंस्टेंस वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में 30 GB का एक वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए, ठीक है। इफ यू वांट टू मिनिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द इंस्टेंस यू कैन मिनिमाइज, अदरवाइज आप 30 GB या 40 GB या जो भी आपको रखना है, बेसिकली यू कैन चूज दैट अकॉर्डिंगली। द नेक्स्ट थिंग दैट इज इमेज इज अ कॉपी सर। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम अपने इंस्टेंस की कॉपी बना रहे हैं, तो उसकी कॉपी में कॉपी होगी कि डिसेबल्ड कॉपी होगी? क्या मतलब, जब सर हम इमेज कर लेंगे उसकी बना देंगे, हाँ, तो हाँ, सर्वर रनिंग होगा कि वो पॉज स्टेट में होगा, समथिंग लाइक सर्वर दैट? रनिंग होगा ऑब्वियसली। अभी कॉपी बनाएंगे, कॉपी बनाने के बाद ऑटो स्केलिंग में सर्वर रनिंग होगा,
कॉपी बनाते टाइम सर्वर रनिंग नहीं होगा, है ना। ओके सर। सर ऑन सर्वर में बना सकते हैं इमेज? ऑन सर्वर में इमेज, हाँ अभी सिस्टम ऑन ही तो है, ये सिस्टम देखो ऑन है, मैं इसी की इसको इमेज बना बिना के दिखाऊंगा इसको आपको। पॉज नहीं करना पड़ता? ठीक है सर। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो 30 GB का मैंने वॉल्यूम एसोसिएट कर दिया, एंड यू कैन सी देयर इज एन ऑप्शन दैट इज डिलीट ऑन टर्मिनेशन, दैट इज बाय डिफॉल्ट इनेबल। तो अगर आप चाहते हो कि अगर मैं सिस्टम को डिसेबल डिलीट कर दूं, इंस्टेंस को डिलीट कर दूं, तब भी मेरा ये EBS, ये जो वॉल्यूम है ये डिलीट ना हो, तो आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट इनेबल है। जैसे ही आप ये इंस्टेंस डिलीट करोगे ऑटोमेटिकली ये आपका जो स्टोरेज है वो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट द इमेज, ठीक। तो जैसे ही आप क्रिएट इमेज पे क्लिक करोगे, यू विल बी एबल टू सी कि करंटली क्रिएटिंग एन AMI फ्रॉम इंस्टेंस दिस, check that the AMI status is available before deleting the instance or carrying out other actions related to this AMI. अब अगर मैं इस AMI पर क्लिक करता हूं तो आई विल बी एबल टू सी कि वो AMI क्रिएट हो गई है या नहीं हुई है, ठीक है। और इस AMI को चेक करने के लिए आई कैन गो टू दी डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड पेज पे, आपको देख सकते हो इमेजेस के अंडर में यू कैन फाइंड AMIs। तो मैं इसको एक दूसरी टैब में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यू कैन सी कि AMI with the AMI ID this has been created, और ये वही आईडी है, देखो यू कैन सी 1735890C084BEC 1735890C084BEC, ठीक है। सो विद द नेम ऑफ AMI सर्वर 1 इमेज मैंने एक AMI क्रिएट कर ली है, एंड द सोर्स इज दिस वन, द ओनर इज दिस वन, आई एम द ओनर, so you can see that I am the owner, 762779711583, and the visibility is private because only I can access it, and the status is showing pending. The status is showing pending, that means अभी ये create नहीं हुआ है, जब तक ये available ना हो तब तक I will not be able to take the action associated with that instance, ठीक है। After that we have other details कि Windows का प्लेटफॉर्म है या Linux का प्लेटफॉर्म है, रूट डिवाइस टाइप कौन सा है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर है या कोई और है, ठीक है। ब्लॉक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, वर्चुअलाइजेशन कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, और डिप्रीकेशन टाइम, इस तरह की बहुत सारी डिटेल्स आपके साथ एसोसिएटेड हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। नाउ व्हाट यू नीड टू सी इज दैट, अभी ओके एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या ये पेंडिंग स्टेट में ही है अभी या एक्टिव स्टेट में आ गया। अभी एक्टिव में नहीं आया है, इट इज इन पेंडिंग स्टेट ओनली, ठीक है। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम जब तक कि एक्टिव स्टेट में आ जाए, और ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन सी सर कीर्ति सेइंग मेरा EC2 इंस्टेंस डिस्कनेक्ट हो गया व्हाइल डूइंग दिस स्टेप। मेरे में भी यही हुआ है कीर्ति, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। यू कैन सी मेरा भी रिमोट डेस्कटॉप सर्विस हैज एंडेड, क्योंकि कुछ पोर्शन आपने जब ये सिस्टम रनिंग में है तो ऑटोमेटिकली बहुत कम टाइम, मतलब ये एक बार रीबूट होगा, है ना। आई विल बी एबल टू लॉग इनटू द सिस्टम वंस अगेन, एक बार ट्राई कर लेते हैं, है ना। मैं इस इंस्टेंस को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, कनेक्ट RDP क्लाइंट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी आई विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट इट, अभी तक ये टर्मिनेट, अभी ये इंस्टेंस कनेक्ट नहीं हुआ है। ओके तो एक काम करते हैं, इस इंस्टेंस पर चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या ये रनिंग मोड में है। यस इट इज रनिंग, इट इज इन दी रनिंग स्टेटस। अभी ये सिस्टम चेक में पास नहीं हुआ, इसलिए शायद मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके व्हाट इज द एरर, लेट मी चेक।
इंस्टेंस रीचेबिलिटी चेक फेल्ड, मतलब अभी इंस्टेंस रीच नहीं हो पा रहा है। ओके सर स्टेटस क्या आ रहा है ऊपर? स्टेटस तो वही आ रहा है ना, 1/2 चेक पास। अभी एक चेक जो है वो पास नहीं हुआ। दिस इज दी स्टेटस, यू कैन सी अंडर दैट स्टेटस चेक। तो ये एक इंस्टेंस रीचेबिलिटी चेक हैज फेल्ड। कोई नहीं, थोड़ी देर में ट्राई करते हैं एक बार। मैं इसको देख लेता हूँ कि क्या ये एक्टिव हो गया। अभी भी ये पेंडिंग नहीं है, इट इज इन द पेंडिंग स्टेट। एक बार इंस्टेंस को पहले इसकी इमेज क्रिएट हो जाने देते हैं, उसके बाद we'll try to run the system। ये पेंडिंग स्टेट में है। एक काम करते हैं, इसको रीबूट कर देते हैं इंस्टेंस को, ठीक है, सो दैट वील बी एबल टू कनेक्ट कि वो इंस्टेंस पर हम कनेक्शन कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो 2/2 चेक पास हो गया और अब मैंने इंस्टेंस को स्टॉप कर दिया था। All right, so hopefully I'll be able to connect to the instance now. It is not going to connect. Let me check the security group कि security group में मैंने कुछ change तो नहीं करा है। RDP allowed है, ठीक है। Sometimes it happens, don't worry about that, because हमारा सिस्टम में मेमोरी भी कम है कंपैरेटिवली, और हम बहुत लिमिटेड रिसोर्स के साथ कर रहे हैं। अगर आप ये सेम काम कर रहे हो तो यू कैन डू इट विद दी लार्ज मेमोरी। आप तो एक की जगह 4 GB रैम के साथ सिस्टम को लॉन्च कर सकते हो यूजिंग T2.medium, है ना, एक्सक्यूज मी T2.micro। सर, यस मेरा एक जेनेरिक क्वेश्चन है। हम इसको लाइनक्स EC2 क्यों नहीं ले रहे हैं, विंडोज को ले रहे हैं? उसमें फिर रन करने में इतना टाइम वगैरह लगता है। लाइनक्स को हम इसमें डायरेक्ट टर्मिनल SSH लॉन्च करके भी तो कर सकते हैं ये सब। हाँ, वो कर सकते स्पेस हैं, बट कर रहे हैं। सपोज मेरे को कोई फाइल एंड फोल्डर को एक्सेस करना GUI के थ्रू, मेरे को एक्सप्लेन करना भी काफ़ी इजी रहेगा, इसलिए विंडोज सिस्टम एक्सेस कर रहा हूँ। अदरवाइज देयर इज नो इशू। लाइनक्स भी कर सकते हैं, विंडोज भी कर सर सकते सर हैं। वैसे फिर वो लाइक कमांड्स के थ्रू ज्यादा इजी और फास्ट नहीं रहेगा? मतलब पहले इसको विंडोज को जो भी क्लाइंट है उसको रन करो, फिर लाइक माउस से वो सब करो। ये लाइक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस भी। टर्मिनल में लाइक कमांड्स इजी हैं, 2-3 कमांड्स ही हैं बस, और हाँ, उससे लाइक फास्ट भी रहेगा, वो उसमें कोई इंस्टेंटली इशू ओपन नहीं हो है, जाता ठीक है। ठीक है। समटाइम्स इट हैपेंस कि अगर आप देखो, अगर आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो लाइनक्स कमांड को तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते तो क्या होता है कि आपको फिर कमांड सर्च करनी पड़ती है, कमांड आप भूल जाते हो, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं उस कमांड को रिकॉल करूँ, फिर उस कमांड का री यूज, फिर आप अगर सपोज GUI पे मेरे को सब चीज दिख रही है, ठीक है, इसलिए ज्यादा बेटर, मतलब मेरे को लगता है पर्सनली एक्सप्लेनेशन के थ्रू, कि अगर आप उस चीज को एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ GUI, कमांड लाइन के थ्रू तो आप ऑटोमेटिकली कर ही सकते हो, देयर इज नो इशू, ठीक है। बट अल्टीमेटली यू मस्ट रिमेंबर द कमांड्स, जो बेसिक कमांड्स है वो आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज यही होगा, आप हर बार आप कमांड सर्च करते रहोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लिनक्स के थ्रू नहीं कर सकते, बट इट्स आई एम सॉरी, इट इज बेटर प्रैक्टिस टू गो विद द GUI, क्योंकि आप अभी हम फिलहाल डेमो के लिए कर रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते टाइम आप इसको n नंबर ऑफ टाइम्स लिनक्स पे इंस्टॉल करिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ वो चीज़ आपको विंडोज पे दिखाना मेरे लिए ईजी भी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने विंडोज चूज करा है। बाकी आप बिल्कुल यही सेम काम लिनक्स के लिए भी कर सकते हो, देयर इज नो इशू इन दैट, ठीक है। सर EC2 को रीस्टार्ट करके देख लेते हैं। हाँ, EC2 रीस्टार्ट कर लो, मेरे में तो हो गया, ये स्टेटस दिखा रहा है आपको अवेलेबल, मेरी इमेज बन चुकी है, ठीक है। एक बार कनेक्ट और करके देख लेता हूँ मैं, आई विल नॉट बी बस एबल टू रीस्टार्ट से कनेक्ट। हो जाएगा। इट इज रनिंग, यस इट इज रनिंग। सर इमेजेस का बेनिफिट तो नहीं होता जब हमें मूव करना होता है फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर, फॉर एग्जांपल AWS से कहीं और जाना हो?
AWS से कहीं और से ना तो शायद हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि बेसिकली कर भी सकते हैं, नो वरीज, बट व्हाट हैपेंस ना, उसके लिए केवल इमेज से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और भी चीज चाहिए होगी। इमेज में हम लोग माइग्रेट कर सकते हैं अमेजोन टू अमेजोन। मतलब अभी सपोज मैं मुंबई में हूँ और सपोज मैं एक स्टार्टअप लॉन्च कर रहा हूँ और आई एम स्टार्टिंग इन फॉर इंडिया ओनली, ठीक है, और द सेम स्टार्टअप आई वांट टू स्टार्ट इन सपोज इन अमेरिका। देन व्हाट हैपेंस कि मेरे को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मेरे को उस सिस्टम को सेम सिस्टम को डिप्लॉय करना पड़ेगा इन अमेरिका एज वेल। तो ऐसे केस में इंस्टेड ऑफ डिप्लॉइंग द होल सिस्टम, मैं इस सिस्टम की इमेज बनाऊंगा और उस इमेज को वहां पर रीइंस्टॉल कर दूंगा। मतलब एक तरीके से उस इमेज को यूज करके एक सिस्टम लॉन्च कर दूंगा, तो वही सेम सिस्टम मेरा रेप्लिकेट हो जाएगा इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अमेजोन वेब सर्विसेज या अमेजोन क्लाउड पे। तो ऑटोमेटिकली उसका वहाँ फायदा हो सकता है। अगर मैं दूसरे क्लाउड पर जाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे को उस क्लाउड के करस्पॉन्डिंग जो कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं उनके थ्रू भी चेक करना पड़ेगा कि हाँ वो कंपैटिबिलिटी दूसरे क्लाउड के साथ है। तो अगर है तो ऑब्वियसली आई कैन डू दैट, अदरवाइज मेरे को थोड़े चेंजेस करने पड़ सकते हैं। सो अभी ये 2x2 स्टेटस चेक 5 दिखा रहा है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, फटाफट से इसको रन करा के देखते हैं। होपफुली अब रन कर जाना चाहिए। यस, इट इज नाउ इन दी रनिंग स्टेट। और मैं देखता हूँ कि उस सिस्टम में जो मैंने डेस्कटॉप पर फाइल बनाई थी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से, क्या वो अभी भी है? होनी चाहिए, क्योंकि मेरा सिस्टम है और मैंने सिस्टम को टर्मिनेट नहीं करा। जब तक टर्मिनेट नहीं करूंगा तब तक वो इंस्टेंस का एक्सेस मेरे पास रहेगा। यू कैन सी दैट देयर इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर सिस्टम एंड द आईपी इज सेम, ठीक है। लेट मी चेक इट। यस, यू कैन सी दैट, ठीक है। अब इसको कर देते हैं क्लोज। अब हमारा इंस्टेंस भी रनिंग हो चुका है और हमने एक इमेज भी क्रिएट कर ली है एंड दैट इज अवेलेबल एज वेल। अब the very next thing that we need to do is we need to go to the instance dashboard, EC2 dashboard, और यहाँ पर हम सबसे लास्ट में जाएंगे ऑटो स्केलिंग सेक्शन के अंदर, and there you can find two options, launch configurations and auto scaling groups. So when we click on launch configurations, ठीक है, आप सबसे पहले launch configuration पे क्लिक करोगे and there you can see there is no launch configuration available, ठीक है। So you need to create the launch configuration. आपने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको उसका कोई भी नाम दे देना है, ठीक है। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का मैं नाम दे देता हूँ LC फॉर सर्वर 1, ठीक है। सर्वर का S कैपिटल कर देना ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक। तो LC फॉर सर्वर 1, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन फॉर सर्वर 1, ये मैंने इसका नाम दे दिया। और उस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में आई नीड टू अपडेट द AMI, मशीन इमेज मेरे को चूज करनी पड़ेगी। और वो मशीन इमेज विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू आई कैन गेट कि कौन सी मशीन इमेज मेरे को चूज करनी है। यू कैन सी दैट अंडर दैट AWS मार्केटप्लेस आई हैव सेवरल मशीन इमेजेस, बट there is one machine image under my AMI section and that is server 1 IMG, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था अपने सिस्टम के लिए। इस सिस्टम की जो इमेज बनाई है मैंने वो क्या बनाई है, server 1 IMG, and that is available in this my AMI ID, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि मुझे इस AMI को ही यूज करके एक सिस्टम लॉन्च करना है, रेप्लिकेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्टेंस टाइप। तो चूंकि मैं अपनी फ्री टियर में ही रहना चाहता हूं तो आई कैन चूज द इंस्टेंस टाइप एज t2.micro बिकॉज इट इज फ्रीली अवेलेबल। तो जो इंस्टेंस मेरा लॉन्च होगा उसमें t2.micro टाइप का इंस्टेंस लॉन्च होगा, मतलब 1 वर्चुअल कोर CPU के साथ 1 GB रैम के साथ ही मेरा सिस्टम लॉन्च होगा। The next thing that I need to choose is the additional configurations. They are optional, but एक बार देख लेते हैं कि ये है क्या क्या। Purchasing options, अगर आप ये फ्री टियर के अलावा परचेजिंग ऑप्शन में जाते हो तो परचेजिंग ऑप्शन में आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो स्पॉट इंस्टेंसेस को। इफ यस देन यू कैन क्लिक ऑन रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंसेस, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे आपने इस पर क्लिक करा यू कैन सी कि $0.0083 ये साउथ 1A में है और $0.0083 साउथ 1B रीजन में भी है, ठीक है। तो आप कोई भी चूज कर सकते हो। IAM इंस्टेंस प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट हम कोई IAM रोल से कनेक्ट नहीं करना चाहते इस इंस्टेंस को, तो हम इसको लीव ऐसे रहने देते हैं। देन इफ यू वांट टू गेट द डिटेल्ड मॉनिटरिंग ऑफ द इंस्टेंस यूजिंग द क्लाउड वॉच तो हम इसको इनेबल भी कर सकते हैं। अदरवाइज अभी फिलहाल के लिए हमारा मेन पर्पज है अपने सिस्टम को रेप्लिकेट करना, तो उस रेप्लिकेशन के लिए वी विल बी प्रोवाइडिंग द
ऑटो स्केलिंग ओनली फीचर, तो हम मॉनिटरिंग के लिए अपनी स्टडी को फोकस नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज द EBS ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस। तो अगर हम चाहते हैं कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोर जो है मेरा वो ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस की तरह काम करे और उसको लॉन्च करना है मुझे, तो आई कैन टिक ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, अदरवाइज मैं इसको छोड़ सकता हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी इज द स्टोरेज वॉल्यूम। तो बाय डिफॉल्ट 30 GB अवेलेबल है। यू कैन चूज एनी थिंग बिलो देन दैट, और ऑब्वियसली से ज्यादा भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 GB ही चूज करने देते हैं, कोई इशू नहीं है। अगला सिस्टम जो भी इंस्टॉल होगा, जो भी लॉन्च होगा, दैट विल हैव अ कैपेसिटी ऑफ 30 GB। नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो अभी हमने सिक्योरिटी ग्रुप वही चूज करना है जिस सिक्योरिटी ग्रुप से हमने अपने EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करा था। तो अगर आपको याद हो, सिक्योरिटी ग्रुप हमने शायद लॉन्च विजार्ड 9 चूज करा था ना। यस, लॉन्च विजार्ड 9, क्योंकि हमने 21 दिसंबर को ये 21 दिसंबर को हमने ये क्रिएट करा है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हमारा ये लॉन्च विजार्ड 9 वाला सिक्योरिटी ग्रुप हम चूज कर लेंगे। इट फिर मस्ट बी मैंने सेम। EC2 में ये किया नहीं था, तो मैं ऑटो स्केलिंग वाला ही चूज कर लूं। क्या चीज? मैं आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी क्या? सर EC2 में मैंने सिक्योरिटी ग्रुप नहीं चूज किया था, तो मैं अब ऑटो स्केलिंग वाला वो कर रहा हूँ। नहीं, आपने सिक्योरिटी ग्रुप चूज नहीं करा था, चूज मैंने भी नहीं करा था, लेकिन वहां पे मैंने क्रिएट करा था। और उस क्रिएट करते टाइम मैंने नोट करा था इसका नाम क्या था, उसका नाम था लॉन्च विजार्ड 9। अगर आप यहाँ पे क्रिएट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करोगे ना, तो यू विल बी एबल टू गेट द लिस्ट ऑफ दैट, ऑल ऑफ दैट। तो आप देखोगे जैसे यहाँ पर आ रहा है, इसको आप एक बार क्लिक करो सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप पे, तो आपके पास जितने भी सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं सारे आ जाएंगे। और फ्रॉम देयर यू कैन सी कि वो जो लॉन्च विजार्ड 1 2 3 4 5 6 जो भी आ रहे हैं आपके, है ना, वो आज की डेट में आपने कौन सा बनाया है, जो सबसे लेटेस्ट हो उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। मिल गया? नहीं सर, मैंने क्रिएट नहीं किया, पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप के बिना आप एक्सेस कैसे कर सकते हो EC2 इंस्टेंस? लॉन्च हो गया आपका EC2? हाँ जी, लॉन्च हो गया, रन भी हो रहा है। तो सिक्योरिटी ग्रुप तो होगा ना उसके लिए। यहाँ पे आप क्लिक करके देखो जरा, सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप पे। सर इस पे क्लिक करने पे एक तो डिफॉल्ट आ रहा है, एक लॉन्च विजार्ड 1 आ रहा है। और लॉन्च विजार्ड 1 के आगे क्रिएटेड डेट में क्या आ रहा है? इसमें 21/1/2/2022। यस सर। और उसके आगे टाइम आ रहा होगा T08 40 38 39, जो भी आपने जिस भी टाइम पे आपने लॉन्च करा हो, यही आ रहा होगा लगभग लगभग सेम। तो ये लाइक जब EC2 ये लॉन्च करने खुद बन जाती है, क्योंकि आई रिमेम्बर मैंने तो नहीं बनाया सिक्योरिटी ग्रुप। हाँ, आपने बनाया नहीं है, लेकिन आपने ध्यान होगा जब आप क्रिएट EC2 होता है। इंस्टेंस लॉन्च करते हो, तो वहां पर हाँ सिक्योरिटी जी। ग्रुप का ऑप्शन आता है, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप और सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। तो आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफॉल्ट क्रिएट पे सेटिंग रहती है, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ओके क्रिएट हो गया, ओके तो सर, आप सिक्योरिटी ग्रुप जो लॉन्च विजार्ड नंबर 1 है वो सिलेक्ट कर लो, गॉट इट। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द की पेयर लॉगिन। अब की पेयर मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पिछले वाले सिस्टम पर लॉगिन करा है यूजिंग s1.pam। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑप्शन हैं, चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर, या क्रिएट अ न्यू की पेयर, और प्रोसीड विदाउट अ की पेयर। अब अगर मैं चाहता हूं उस सिस्टम को एक्सेस करना, है ना, जो मैं एक नया सिस्टम बनाना चाहता हूं उसको की पेयर के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूं, तो आई शुड चूज द सेम की पेयर। और वो की पेयर कौन सा चूज करा था मैंने? s1.pam। तो यहाँ पर भी s1 लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और देखो आप यहाँ पर की पेयर लॉगिन के बाद जब आप s1 की पेयर चूज कर लोगे, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा ऑप्शन कि आई एक्नॉलेज दैट I have access to the selected private key file. s1.pam का access मेरे पास है, and without this file I won't be able to log into my instance. So I need to confirm this particular checkbox, और फिर I need to click on create launch configuration. जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, you can see कि successfully created launch configuration LC for server 1, ये मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड अंडर द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन यू कैन सी देयर इज वन लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन विद द नेम ऑफ LC फॉर सर्वर 1। ये मैंने क्रिएट कर ली है, जिसकी AMI ID यही है जो ये वाली AMI ID थी, 84BEC 84BEC।
ठीक है। इंस्टेंस टाइप कौन सा लॉन्च करूंगा मैं, t2.micro का, और इसका कोई भी स्पॉट प्राइस नहीं है बिकॉज ये फ्रीली अवेलेबल है अंडर माय फ्री टियर अकाउंट। ठीक, अगर आप कोई भी चूज करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट उसका स्पॉट प्राइस या जो भी चीजें हैं वो दिखने लगेंगी, एंड यू कैन गेट द एसोसिएटेड डिटेल्स बाय क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर launch configuration page. Now what you need to do is you need to go to the EC2 dashboard once again, and after that you need to click on auto scaling group. ठीक है, तो जैसे आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स पे क्लिक करोगे, ये सेम पेज हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट नाउ, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब ऑटो स्केलिंग ग्रुप जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा तो यहाँ पर ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम मुझसे पूछेगा, तो सपोज ऑटो स्केलिंग ग्रुप फॉर सर्वर 1, मैंने इसका नाम दे दिया ऑटो स्केलिंग ग्रुप फॉर सर्वर 1। ठीक, कोई भी आप चूज कर सकते हो जस्ट फॉर हिंट कि मैं इसका नाम कोई देना चाहता हूं। अगर आप इसको छोड़ना भी चाहते हो तो भी यू कैन लीव इट लाइक दैट। लॉन्च टेम्पलेट मुझे कौन सी चूज करनी है, आप देखो ध्यान से, अगर आपने ऑब्जर्व करा हो तो यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िगरेशंस को लॉन्च करा है, लॉन्च टेम्पलेट नहीं करी थी। जो मैंने सेव करा था वो अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस पे क्लिक करा था, लेकिन यहाँ पर आ रहा है लॉन्च टेम्पलेट, बट जस्ट अबव, जस्ट बिसाइड दिस यू कैन सी देयर इज अ स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पेन एज वेल। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो की तरफ स्विच हो जाएगा, और अब आप यहाँ पर अपनी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को चूज कर सकते हो। ठीक है, सिंस वी हैव क्रिएटेड द कॉन्फ़िगरेशन नॉट द टेम्पलेट, तो आपको उस कॉन्फ़िगरेशन में से चूज करना है। तो यहाँ पर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस सर ये टेम्पलेट क्यों रिकमेंड कर रहा है इसकी जगह पे वैसे? एक्चुअल में अभी तक क्या था ना, ये थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, इन्होंने अभी कुछ चेंजेस करे हैं। अभी तक क्या होता था, हमेशा हम जो भी काम करते थे वो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में ही करते थे, बट अब उन्होंने उस काम को थोड़ा सा और अपडेट करके इन्होंने टेम्पलेट बना लिया है। सो यू नीड टू क्लिक क्रिएट द टेम्पलेट एंड यू कैन चूज द टेम्पलेट। ये पेड सर्विसेज के लिए, जब हम एक्चुअली एग्जैक्ट सेम सिस्टम जिसके अंदर हम कोई ना कोई डिप्लॉयमेंट भी कर लेते हैं कोड्स के, ठीक है, उसके लिए टेम्पलेट हमारे लिए बेटर रहती है। बट अगर अभी फिलहाल के लिए हम देखें एज ए डेमो, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम उस सिस्टम को रेप्लिकेट कर पाए। तो उसके रेप्लिकेशन के लिए जो हमारा पुराना वाला अब तक का टेक्निक थी, दैट इज टू गो विद द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, तो हम उस पर चलते हैं। ठीक है, लॉन्च टेम्पलेट अभी ये मैं समझता हूँ शायद 2-3 महीने पहले तक अवेलेबल नहीं था, अभी ये आना शुरू हुआ है। ठीक, आफ्टर दैट जैसे आप लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करोगे, यू कैन सी देयर इज अ ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, और इस ड्रॉप डाउन पे आप अपना LC फॉर सर्वर 1, जो हमने अभी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी सर्वर 1 के लिए, उसको चूज कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन LC फॉर सर्वर 1 and you can see the associated details with that configuration. So LC for server 1 नाम है इसका, सिक्योरिटी ग्रुप मैंने ये एसोसिएट कर रखा है, t2.micro इंस्टेंस टाइप मैंने लिया है, और s1.pam मैंने की पेयर नेम लिया है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपसे ये पूछेगा कि आपको कौन से VPC के अंदर ये नेटवर्क कनेक्ट करना है। तो सिंस वी हैव ओनली वन VPC, दैट इज डिफॉल्ट वन, तो हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं किसी दूसरे VPC के अंदर कनेक्ट करना, तो सपोज अभी मैं मुंबई में हूँ, तो मुंबई में एक VPC क्रिएट कर लिया। अभी मैं नॉर्थ वर्जीनिया में जाऊँ, वहां पर अगर मैं एक दूसरा VPC क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उस VPC को इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे, एंड द सेम सिस्टम विल बी लॉन्च्ड देयर ओनली। ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन सिलेक्ट कि कौन से अवेलेबिलिटी जोन एंड सबनेट के अंदर आई वांट टू लॉन्च द सेम इंस्टेंस। तो अंडर दैट अवेलेबिलिटी जोन्स एंड सबनेट्स यू कैन सी there is a list of all availability zones in that region. तो मुंबई रीजन में मेरे पास 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है। आई कैन चूज कि इन तीनों में से कोई भी चूज हो जाए, या फिर केवल एक पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ही आई वांट टू लॉन्च माय इंस्टेंस। तो अभी सिंपलिसिटी के लिए मैंने इन तीनों को ही चूज कर लिया है, ताकि रेंडमनेस मैं आपको शो कर सकूं कि किस तरीके से कोई इंस्टेंस जो लॉन्च हो रहा है वो 1A में हो रहा है, कोई 1B में, तो कोई 1C में। ठीक है, नेक्स्ट इज सर अभी 3 इंस्टेंस लॉन्च हो जाएंगे, एक ही हुआ? नहीं, इंस्टेंस अभी आगे चलेंगे। ये अवेलेबिलिटी जोन है, वो एक इंस्टेंस जो भी लॉन्च होगा वो इन तीनों में से किसी भी एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर लॉन्च हो सकता है। देखो, Amazon वेब सर्विसेज 2 चीजों पे काम करती है, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज रीजन, जो ये रीजन आपको दिख रहा है मुंबई या नॉर्थ वर्जीनिया, है ना, या यूरोप का
आयरलैंड है, लंदन है, पेरिस है, ठीक है। एशिया पैसिफिक का सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो एंड सो ऑन। तो ये सारे रीजन्स हैं। अंडर दैट रीजन वी हैव मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स। नॉर्थ वर्जीनिया में सबसे ज्यादा 6 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। आप अगर नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में ही अपने सर्विसेज को इंस्टॉल करते हो, लॉन्च करते हो, तो आप देखोगे आपके वाले में ऑप्शन, सॉरी क्या कर दिया मैंने, आपके वाले में ऑप्शन आ रहा होगा कि अगर आप नॉर्थ वर्जीनिया सिलेक्ट करते हो तो आपके में यहाँ अवेलेबिलिटी जोन 6 आ रहे होंगे। अगर आप पैरेलली मेरे साथ काम कर रहे हो तो यू कैन चेक दैट नाउ। यहाँ अवेलेबिलिटी जोन्स 6 सर वो अवेलेबिलिटी ट्रैफिक के जोन्स आ रहे बेसिस पे होता होगा ना, जिसमें ज्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स। हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अमेजोन ने किस तरीके से डिसाइड करा है, डिजाइन करा है, वो उसके ऊपर है, ठीक है। तो ट्रैफिक का कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। हाँ, मतलब ये अमेजोन ने जरूर सोचा होगा कि शायद उस जोन में ज्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रहा होगा, तो वहां पर उसने ज्यादा हाईली स्केलेबल कर रखा है अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके 6 आ रहे हैं ना, यूएस ईस्ट 1A 1B 1C 1D 1E 1F। एक बार मुझे बता दो फटाफट से कि 6 अवेलेबिलिटी जोन्स आ रहे हैं यहाँ यस पे। गुड, ओके, ठीक है। सो ये अवेलेबिलिटी जोन्स का मतलब ये है कि मैं अपने किस जोन के अंदर, किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर वो सेम इंस्टेंस लॉन्च करना चाहता हूँ, ठीक है। नाउ कितने इंस्टेंसेस लॉन्च करूंगा वो हम अगले पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज बेसिकली दी लोड बैलेंसर्स, ठीक है। अब देखो यूजुअली होता क्या है, जब भी मैं कोई एक इंस्टेंस को, मल्टीपल इंस्टेंसेस को क्रिएट करता हूं तो उसका मेन पर्पस क्या है, आई एम क्रिएटिंग इट जस्ट फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द लोड, ठीक है। तो लोड बैलेंसर्स भी मैं लगाना चाहता हूं, बट अगर मैं लोड बैलेंसर लगाऊंगा तो मुझे लोड बैलेंसर्स की कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ेगी और अननेसेसरी ये प्रोसेस थोड़ा हैवी हो जाएगा, ठीक। और मैं आपको केवल और केवल इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप का फंडामेंटल बताना चाहता हूं कि किस तरीके से ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी अपने सिंप्लिसिटी के लिए कोई भी लोड बैलेंसर चूज नहीं कर रहा हूँ, और बाय डिफॉल्ट ये मेरे को नो लोड बैलेंसर चूज करके देगा। अगर मैं चाहता हूँ एक एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर को अटैच करना, तो आई कैन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। और अगर मैं एक नया लोड बैलेंसर क्रिएट करके उसको अटैच करना चाहता हूँ, तो आई कैन क्लिक ऑन दी अटैच टू अ न्यू लोड बैलेंसर। बट अभी फिलहाल के लिए अगर मैं ये चूज करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी प्रोसेस थोड़ी सी और लेंदी हो जाएगी, सो आई एम अवॉइडिंग इट। ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी सीन कि लोड बैलेंसर कैसे काम करता है, ये हम कल डेमो में देख चुके हैं। नेक्स्ट इज दी हेल्थ चेक, दिस इज ऑप्शनल। हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड यहाँ पर आपको दे रखा है 300 सेकेंड्स का, ठीक है। यू कैन सी दैट द अमाउंट ऑफ टाइम अंटिल EC2 ऑटो स्केलिंग परफॉर्म्स द फर्स्ट हेल्थ चेक फॉर द न्यू इंस्टेंसेस आफ्टर दे पुट इनटू द सर्विस। जब भी मेरे एक सिस्टम की हेल्थ चेक होगी वो हर 300 सेकंड के बाद होगी। 300 सेकंड का मतलब 5 मिनट बाद होगी। जब भी एक EC2 इंस्टेंस ऑटो स्केलिंग ग्रुप के द्वारा लॉन्च होगा तो आफ्टर 5 मिनट आई विल चेक द फर्स्ट हेल्थ चेक। अगर मैं चाहता हूं इसको कम करना, आई कैन मिनिमाइज इट, अदरवाइज आई कैन लीव इट लाइक दैट, ठीक है। तो मैं सपोज अगर 1 मिनट करना चाहता हूं, आई कैन पुट इट 60। अगर मैं 3 मिनट करना चाहता हूं, आई कैन पुट इट 180। जो भी आपका मन करे, यू कैन चूज एनी ऑफ द रेंज। बाय डिफॉल्ट 300 सेकंड्स थी, मतलब हर 5 मिनट के बाद ये अपने सिस्टम की हेल्थ चेक को मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट इज एडिशनल सेटिंग्स। इसमें मॉनिटरिंग अगर मुझे करनी है यूजिंग क्लाउड वॉच तो मैं इसको इनेबल कर सकता हूँ, है ना। और इंस्टेंस का डिफॉल्ट वार्म अप अगर मैं इनेबल करना चाहता हूँ, सो दैट आई कैन डू दैट। वार्म अप की वजह से क्या होगा, मैं क्लाउड वॉच में मैट्रिक्स को जल्दी से मॉनिटर कर पाऊंगा, ठीक है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर आती हैं 3 चीजें, जो कि है ग्रुप का साइज। तो जो अभी आप पूछ रहे थे कि अवेलेबिलिटी जोन मुझे बताएगा कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस लॉन्च करने हैं, नहीं, वो बताएगा मुझे ये पेज ग्रुप साइज कितना रखना है। सो यू कैन सी देयर इज वन ऑप्शन दैट इज डिजायर्ड कैपेसिटी। कितने इंस्टेंसेस मैं चाहता हूं कि मेरे मिनिमम ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स में इतने मिनिमम कैपेसिटी बनी रहे, ठीक है। तो आई कैन चूज अ मिनिमम ऑफ 1, मैक्सिमम आई कैन चूज अप टू, बहुत सारे सिस्टम चूज कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन कितनी उसकी कैपेसिटी है। बट अभी फिलहाल के लिए क्या करते हैं, 2 चूज कर लेते हैं। मैं अपने इस कंप्यूटेशनल पर्पसेस के लिए मिनिमम 2 इंस्टेंसेस को हमेशा चाहता हूँ रन करना, ठीक है। नेक्स्ट इज द मिनिमम कैपेसिटी। कितने इंस्टेंसेस एक टाइम पे लॉन्च हो, मिनिमम 1 हो, मैक्सिमम 2 हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा करता हूँ तो, ठीक है। तो अब मेरे मिनिमम इंस्टेंस 1 लॉन्च होंगे, मैक्सिमम 2 लॉन्च होंगे, और मैं अपने डिजायर्ड कैपेसिटी 2 को मीट करना चाहता हूँ। यानी कभी भी इंस्टेंस अगर 2 से कम होते हैं, आई विल ऑटोमेटिकली लॉन्च दी अनदर इंस्टेंस, ठीक है। उसके बाद स्केलिंग पॉलिसी। तो स्केलिंग पॉलिसी में ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर हम चाहें
कि इसको चेक करना, तो यू कैन सी कि अगर मैं स्केलिंग करना चाहता हूं तो किस बेसिस पे करूं, अगर मेरे सीपीयू का एवरेज यूटिलाइजेशन 50% से ज्यादा हो जाए, ठीक है। और इंस्टेंस नीड कितने सेकंड्स का वार्म अप टाइम, तो सपोज 1 मिनट का वार्म अप टाइम उसके लिए सफिशिएंट है, मैं 60 सेकंड्स यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। तो जैसे ही सीपीयू की एवरेज यूटिलाइजेशन वैल्यू 50% से ज्यादा होगी और 60 सेकंड्स तक वो वार्म अप करता रहेगा, अगर उसी कंडीशन में रहेगा, देन आई विल लॉन्च दी अनदर इंस्टेंस। इंस्टेंस स्केल इन प्रोडक्शन ये ऑप्शनल है। अगर मैं चाहता हूं कि सिस्टम में जैसे ही मेरा इंस्टेंस स्केल इन हो रहा है तो उसको भी मैं प्रोटेक्ट कर पाऊं, ठीक है, मतलब नए इंस्टेंसेस को स्केल इन के लिए प्रोटेक्शन कर सकता हूं, उसके लिए मुझे यहाँ इनेबल करना पड़ेगा। कीर्ति इज आस्किंग सर, ये मैनुअल ऑटो स्केलिंग की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं या डायनामिक? वी आर क्रिएटिंग इट फॉर डायनामिक, ऑब्वियसली मैनुअल नहीं कर रहे हैं, बट ये जो ऑप्शंस चूज करें ना, ये 2 1 2, दीज आर नीड टू बी चूजन मैनुअली, ठीक है। ऑब्वियसली इसको हम यूजिंग सम स्क्रिप्ट्स जेसॉन की फाइल में इनपुट दे करके भी कर सकते हैं, बट वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंटली अगर आपने वो टेम्पलेट्स डाउनलोड कर रखी हैं या अगर आपके पास हैं ऑलरेडी, तो आपको उनको मॉडिफाई करना आसान है रादर देन टू गो एंड फॉलो ऑल द स्टेप्स, क्योंकि अगर आपने कोई भी एक स्टेप यहाँ पर गलत फॉलो कर लिया तो यू माइट लैंड टू अ डिफरेंट रॉन्ग सिनारियो, है ना। तो ऐसे केस में प्रोग्रामेटिकली अगर आप जाओगे तो वहां पर टेम्पलेट्स के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको डायनामिकली बता रहा हूँ। ये सब चीजें डायनामिकली ही चलेंगी, बट यू नीड टू फॉलो सम मैनुअल प्रोसेस टू गेट इट लॉन्च्ड इन द डायनामिक फैशन, ठीक है कीर्ति? Yes, sir. ओके, नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो अभी मैंने क्या करा, यहाँ पर आप देख सकते हो डिजायर्ड कैपेसिटी आई हैव चूजन एज 2, दैट मींस मिनिमम 2 ऑटो स्केलिंग इंस्टेंसेस तो मेरे पास रहेंगे हमेशा। एक मिनिमम मेरा लॉन्च होगा और मैक्सिमम मेरे 2 लॉन्च हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं डिजायर्ड कैपेसिटी 3 कर दूंगा या 4 कर दूंगा, तो डिपेंडिंग ऑन कितने इंस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आई कैन हैव मल्टीपल इंस्टेंसेस लॉन्चिंग एट वन टाइम, ठीक। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद नोटिफिकेशंस हम इसको स्किप कर देते हैं और टैग्स भी हम स्किप कर देते हैं, अभी फिलहाल के लिए कोई जरूरत नहीं है। एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या करा। वी हैव क्रिएटेड अ ग्रुप डिटेल दैट इज ऑटो स्केलिंग ग्रुप फॉर सर्वर 1 एंड वी हैव चूजन द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन दैट इज LC फॉर सर्वर 1, ठीक। Under that network we have chosen the default VPC and the availability subnet zones we have chosen all 3 availability zones, ठीक है। Then we have seen the configuration of advanced options. load balancing हमने नहीं लगाई है, health check हमने रखा है 180 seconds का 3 मिनट का grace period, ठीक है। additional settings में हमने दोनों ही चीजें डिफॉल्ट रखी हैं। उसके अलावा कॉन्फ़िगर ग्रुप साइज में हमने डिजायर्ड कैपेसिटी चूज करी है 2 की, मिनिमम है 1 और मैक्सिमम है मेरे पास 2। स्केलिंग पॉलिसी में वी हैव अप्लाइड टारगेट स्केलिंग अप टू द सीपीयू यूटिलाइजेशन व्हेन इट इज क्रॉसिंग द एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन बाय 50%, और हम 60 सेकंड्स का वार्म अप टाइम लेंगे जिससे कि ये मेरे मेट्रिक में इंक्लूड हो जाए, जस्ट फॉर द क्लाउड वॉच सिनेरियो। अगर मैं मॉनिटर करना चाहता हूँ देन ओनली इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग्स आर नॉट चेंज, सो एक काम करते हैं फटाफट से क्लिक ऑन क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे क्लिक कर लेते हैं। You can see that there is a group that has been created. Security group मेरा create हो चुका है। अब जैसे ही मेरा security group create हो चुका है, you can see there is updating capacity message is showing in the status, ठीक है। And you need to check कि कौन कौन से instances running है, ठीक है। अभी आपने गौर करा हो तो हमने देखा था कि desired capacity मेरी 2 की, ठीक है, और मैंने instances कितने लॉन्च कर रखे हैं, I have launched only 1 instance. So when this status is updated for the auto scaling group, automatically 2 instances will be launched and they will show in the running instances. 180 सेकंड के बाद हमारे ये 2 instances हमें यहाँ पर दिखने लगेंगे। So we are not doing anything, just waiting for some time कि वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप मेरा एक्टिव हो जाए, और ऑटो स्केलिंग ग्रुप जैसे ही अपडेट करेगा कैपेसिटी को, आई विल बी एबल टू सी कि 2 इंस्टेंसेस पैरेलली मेरे को यही सेम सिक्योरिटी ग्रुप के यही सेम कॉन्फ़िगरेशन के मेरे लॉन्च हो जाएंगे। सो वी नीड टू वेट फॉर अराउंड 180 सेकेंड्स, यानी 3 मिनट तक हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, वी विल बी एबल टू सी कि हमारे 2 इंस्टेंसेस और रनिंग हो गए हैं, ठीक है।
इस पॉइंट तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लगभग 3 सेकेंड्स जैसे ही पूरे होंगे, ये स्टेटस अपडेटिंग कैपेसिटी को की जगह यहाँ पर इंस्टेंसेस दिखाने लगेगा, कितने इंस्टेंसेस हैं एक्चुअली रनिंग, कितनी डिजायर्ड कैपेसिटी है, और उतना ही नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को मीट करने के लिए वो रन कर लेगा। ठीक है, सर मेरे सिस्टम में 2 नए इंस्टेंसेस क्रिएट हो गए, जो पहले वाला वेरी था गुड। वो भी है। हाँ, वो भी रहेगा, और ऑब्वियसली 2 इंस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि हमने डिजायर्ड कैपेसिटी रखी है 2 की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके में यहाँ पर दिखाने लगेगा इंस्टेंसेस नंबर 2, और स्टेटस यहाँ पर रनिंग या अपडेटेड कुछ दिखाने लगेगा, है ना, ग्रीन कलर में हो जाएगा यहाँ पर शो। थोड़ी देर में मेरा भी हो जाएगा, देन आई विल बी एबल टू शो यू कि किस तरीके से हम अपने इंस्टेंसेस को बेसिकली ऑटो स्केल कर सकते हैं। ठीक है, सर वो जो ऑलरेडी बन रखा था उसको भी तो काउंट करके 2 होने चाहिए था ना। हाँ आपको डिजाइन लगता है ऐसा, लेकिन लॉजिकली क्या है ना, वो इंस्टेंस ऑटो स्केलिंग ग्रुप का पार्ट नहीं है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप में हमने उस जैसे इंस्टेंसेस को कॉल करा है। ठीक है, तो उस जैसे कितने इंस्टेंस बनेंगे, हमारी डिजायर्ड कैपेसिटी है 2 की, तो 2 उस जैसे इंस्टेंस बन जाएंगे। ओके सर। मेरे में काफी टाइम लग रहा है अभी, आपके में बहुत जल्दी हो गया। और किसी स्टूडेंट का हो गया? नो सर, टाइम ले रहा है। ओके, कीर्ति आपने कितना टाइम लिया था? 180 सेकेंड्स ही लिए थे। यस सर। ओके, देखते हैं हमारा सिस्टम रन तो है, रन तो हो रहा है। कोई नहीं, थोड़ा वेट करते हैं, देन वी विल बी एबल टू सी कि किस तरीके से हमारे इंस्टेंसेस लॉन्च हो जाएंगे। इसका टाइम यूटिलाइजेशन बढ़ा करके देखें। गो टू द टास्क मैनेजर, देखते हैं इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन टाइम कितना है। CPU utilization is almost 5%. Okay, good. काफी टाइम ले रहा है मेरे में तो, अब तक तो हो जाना चाहिए था। सर जो 180 सेकंड्स था वो ये नहीं था कि लाइक हमें 180 सेकंड्स तक सीपीयू को हिट करवाना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। 180 सेकेंड्स के बाद वो अपडेट करेगा। आफ्टर एवरी 180 सेकेंड्स इट विल अपडेट दी स्टेटस ना, तो वो 180 सेकेंड्स स्टेटस अपडेट करने के लिए था केवल। डोंट वरी, एक काम करते हैं हम अभी, एक काम करते हैं कि हम अपने इस सर्वर को ही स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, स्टॉप कर देते हैं।
तो अभी हमारे पास कोई भी इंस्टेंस नहीं है, we'll be able to see कि अभी कोई भी इंस्टेंस नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारे इसके बेसिस पे 2 इंस्टेंस लॉन्च होंगे। ये इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, ऑटो स्केलिंग ग्रुप हमारा टाइम क्यों लगा रहा है, दैट वी नीड टू चेक, क्योंकि ये तो सर नीचे कुछ फील्ड था। ये क्या है, लॉन्चिंग अ न्यू EC2 इंस्टेंस दैट इज इन 29 GB स्मॉलर देन द स्नैपशॉट 30 GB। ये क्या चीज है सर? शायद यही रीजन हो रहा है, लेकिन मैंने तो चेंज करा भी नहीं है। ये अभी आया है तो कुछ 57 मिनट पे, ओके दैट इज व्हाई मेरा इंस्टेंस लॉन्च नहीं हुआ। तो मैंने कुछ गलत पैरामीटर चूज नहीं करा। इट सेज कि 29 GB मेरा वॉल्यूम है, दैट इज स्मॉलर देन स्नैपशॉट। 30 GB का स्नैपशॉट बनाया है, 29 GB लॉन्च करा हूं। मैंने स्नैपशॉट में चेंज तो नहीं करा है, एक बार चेक कर लेते हैं। स्नैपशॉट में तो 30 है। स्नैपशॉट में 30 है ना, हाँ, और वो इंस्टेंस भी मेरा 30 GB का ही है। 20 स्टोरेज 30 GB, 30 लिया है मैंने, 30 का ही बना रहा हूँ, तब क्या दिक्कत है। मे बी दिस इज द रीजन, कोई ना कोई एरर है। नहीं भेजे, काम करते हैं इसको। कीर्ति आप एक बार शो कर दो अपनी स्क्रीन, ठीक है। लेट मी क्रिएट यू दी co-host so that students can get an idea। मैं आपको co-host बना दिया कीर्ति, you can show your screen। ओके ये तो आपका हो गया ऑटो स्केलिंग ग्रुप। आप देख सकते हो इंस्टेंसेस में 2 शो कर रहा है, ठीक है। और ये 2 इंस्टेंसेस आपके रनिंग में आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर रिफ्रेश का बटन दबाओगे तो शायद अब तक ये स्टेटस चेक पास दिखा देगा। देयर यू गो, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप ही सिस्टम पे लॉगिन कर लेते हैं। एक बार सर्वर 1 पे चेक बॉक्स पे क्लिक करो। आपने इसको कनेक्ट करा था? यस सर, कनेक्टेड है। कनेक्टेड है? एक बार शो यस करना जरा मुझे। सर कीर्ति की उसमें देख सकते हैं ना, स्नैपशॉट एंड उसका साइज क्या है दोनों का। हाँ अभी देखते हैं, एक बार मैं ये बता एंड दूं सर आपको। एरर आया कि नहीं इसमें वो भी चेक कर लेते हैं। एरर नहीं आया, अदरवाइज एरर आता तो ये इंस्टेंस लॉन्च ही नहीं होते। मेरे में इंस्टेंस लॉन्च करने की वो कोशिश कर रहा है बार बार, बट लॉन्च नहीं हो रहे, ठीक है। यस सर। कीर्ति मेरे को डिस्प्ले नहीं हो रहा आपने जो सिस्टम लॉन्च करा है, शायद आपने क्रोम शेयर करा होगा। सर, मैं दोबारा शेयर करती हूँ ओके स्क्रीन। ओके सर्वर 1 आपने फाइल बनाई है, ठीक है। अब आप एक काम करो, मिनिमाइज कर लो इसको, ठीक। और अब आप दूसरे सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करो। पासवर्ड आपके पास है ना? You यस have सर। the password? Yes. Okay. So just uncheck the checkbox और कोई दूसरे सिस्टम पे क्लिक करो, कनेक्ट करो, RDP क्लाइंट को डाउनलोड करो। और वही सेम पासवर्ड जो आपने उस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए यूज करा था, यू नीड द सेम पासवर्ड। Connect and paste the password.
सर वो पासवर्ड शायद नहीं है, नहीं है। अब एक काम कॉपी करो, नहीं है। दोबारा उसी वाली विंडो पे आओ, है ना। इफ यू ट्राई टू गेट द पासवर्ड फॉर दिस इंस्टेंस, आप गेट पासवर्ड पे क्लिक करो, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि ये पासवर्ड आपका EC2 इंस्टेंस के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन हम कस्टम AMI से लॉन्च करा तो हम इसका पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में आपको अपने सिस्टम 1 जो सर्वर 1 बनाया था आपने, उससे पासवर्ड लेना पड़ेगा। तो सर्वर Okay, 1 वाले इंस्टेंस पर जाओ और वहां से पासवर्ड को दोबारा रिट्रीव करो। Go to the instances, then choose the server 1, connect, and then RDP client, get password. इस पासवर्ड को कॉपी कर लो और इस पासवर्ड के थ्रू ही बेसिकली वील बी एबल टू लॉग इन टू अनदर सिस्टम। वही रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट जो आपका है, तो वहां पे जाओ, वो ओपन है नीचे, हाँ, पेस्ट इट देयर एंड यू विल बी एबल टू सी कि अब मैं उस सिस्टम पे एक्सेस कर चुका हूँ। When you log into the system, you will be able to see कि जो चेंजेस मैंने अपने सर्वर 1 में करे थे वही सेम चेंजेस मेरे को यहाँ पर भी डिस्प्ले होंगे। ठीक है, द सेम चेंजेस आई विल बी एबल टू सी इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम एज वेल। ठीक, तो जो सर्वर 1 की .txt फाइल मैंने बनाई थी, वो सर्वर 1 .txt मुझे यहाँ पर भी मिलेगा। एंड यू कैन क्लिक ऑन द फाइल एंड यू कैन ओपन इट। आपका IP एड्रेस वही है, यानी जो फाइल के कंटेंट है वो वही है जो पहले थे, ऑल्दो यू कैन सी कि इस सिस्टम का IP एड्रेस डिफरेंट है ना। जो सिस्टम मेरा लॉन्च हुआ है वो सिस्टम है 34.202.236.237, लेकिन आपने IP एड्रेस जो पहले वाले सिस्टम में इंस्टॉल करा था दैट इज 172.319.2.143। ठीक है, तो आपको वही सेम सिस्टम रेप्लिकेट होकर के मिल गया। यही सेम काम आप सेकंड वाले इंस्टेंस के लिए भी कर सकते हो। इसको मिनिमाइज या क्लोज कर दो। जो आपके पास 3 इंस्टेंसेस थे, आपने एक सर्वर 1 और एक पहला वाला लॉन्च कर लिया, दूसरे वाले को और कनेक्ट करके देखो, यू विल बी एबल टू सी कि इस सिस्टम में भी मेरे पास वो सेम फाइल अवेलेबल है। What does it mean? It simply means कि I am actually replicating the instances, और जो इमेज मैंने चूज करी है to get the instance access, वो इंस्टेंस की इमेज का मतलब ये है कि मेरे पास जो एग्जैक्ट सिस्टम है वो एग्जैक्ट सिस्टम रेप्लिकेट हो जाएगा। अब अगर सपोज सर्वर 1 के अंदर मैं कोई स्क्रिप्ट इंस्टॉल करता हूँ, कोई मैं बैकएंड पर कोई डेटाबेस इंस्टॉल करता हूँ, या जो भी काम करता हूँ, बेसिकली कोई पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ, उसके अंदर पाइथन की कुछ स्क्रिप्ट्स रन कराने के लिए अलाउ करता हूँ, या वेबसाइट के लिए होस्टिंग के लिए उसको सर्वर बना देता हूँ, आई कैन डू n नंबर ऑफ थिंग्स। तो अगर मैं उस सिस्टम की इमेज बना लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम की ही इमेज को रेप्लिकेट कर सकता हूँ मैं। यू कैन सी दैट सर्वर 1.txt यहाँ पर भी आ रहा है और इसके अंदर भी वही फाइल होगी। ठीक है, 172.319.2.143। तो एग्जैक्ट सेम सिस्टम मेरे पास ये 3 लॉन्च हो गए हैं। अब इन तीनों सिस्टम्स को अगर मैं लोड बैलेंसिंग के लिए यूज करता हूँ तो इसके पहले लोड बैलेंसर लगा सकता हूँ ताकि मेरा ट्रैफिक आए तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अमंग ऑल दीज 3 इंस्टेंसेस। क्लियर हो गया? एक बार जरा इन सबको क्लोज कर दो। सर इसके पहले IP सेम था, अभी चेंज हुआ है। हाँ, ये पुराना वाला पहले लोड करता है, उसके बाद ये थोड़ी देर बाद अपडेट करता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक ओके है, सर। ये पुराने वाले IP को लोड करता है, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ये रिफ्रेश करता है बैकएंड पर, तो उसकी टेंशन मतलब आप। ठीक है, इसको क्लोज कर दो। अब क्या करना है, अब हमें जाना है सीधे सीधे एक बार ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे जाना है। आपने प्रॉपर्टीज में क्या चीज ली है, हाँ, इस ASG पे क्लिक करो, स्टोरेज ASG फॉर सर्वर 1। नेटवर्क 30, ठीक है, और उसके बाद लोड बैलेंसिंग, हेल्थ चेक 180, 300 टैक्स चूज करना, ठीक है। ASG फॉर सर्वर 1 पे क्लिक करना है एक बार, ये जो ब्लू आ रहा है ऊपर, हाँ, ये इसी पे क्लिक कर लेते हैं। चलो, सेम ही है।
ठीक है, और नीचे आओ, और नीचे आओ, और नीचे आओ। ठीक है, इसमें तो ठीक है। एक बार दोबारा जाना उस पे और कॉन्फ़िगरेशन पे जाना, LC फॉर सर्वर 1 लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। इस LC फॉर सर्वर 1 पे क्लिक कर लो। थोड़ा नीचे आओगे इसमें, ठीक है। तो और नीचे स्टोरेज दिख रहा है इसमें? नहीं, स्टोरेज 30 GB। ठीक है, तो कुछ और इशू है। एनीवेज, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब एक बार एक काम करो, आप अपने पास जो भी 2 इंस्टेंसेस थे ना, इन तीनों इंस्टेंसेस को टर्मिनेट कर दो। जो इंस्टेंस है तीनों, इन तीनों को ही टर्मिनेट कर दो। सिलेक्ट ऑल द इंस्टेंसेस एंड क्लिक ऑन टर्मिनेट। इंस्टेंस स्टेट, इंस्टेंस स्टेट, इंस्टेंस स्टेट, या एंड लास्ट ऑप्शन टर्मिनेट। ठीक है, अब ये तीनों टर्मिनेट हो गए हैं। लेकिन ये टर्मिनेट होने के बाद, जैसे रावण के सिर कटते थे ना और वो दोबारा निकल आते थे, बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ होगा। ये इंस्टेंसेस आप बंद करोगे और थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली ये दोबारा लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम वील सी कि कैसे ये मैं समझता हूँ शायद अगेन इट विल रिक्वायर 3 मिनट्स टाइम। 3 मिनट के अंदर अंदर ये सिस्टम दोबारा लॉन्च हो जाएंगे। अब देखना ये है कि कितने इंस्टेंसेस लॉन्च होंगे, 2 या 3। कोई गैसेस, कोई गैस करना चाहेगा कितने इंस्टेंस लॉन्च होंगे, 2 या 3? सर आपने तीनों बंद कर दिए? हाँ, मैंने तीनों बंद कर दिया। 2 होंगे। 2 होंगे, वेरी गुड। ठीक है, तो लगभग 180 सेकेंड्स ना, ये तो बहुत जल्दी हो गया। 180 सेकंड तो नहीं होंगे आई थिंक। अभी एक हुआ है, थोड़ी देर में दूसरा भी होगा। शायद हर मिनट पर दूसरा एक एक करके होगा। एनीवेज वील सी दैट कि कितने इंस्टेंसेस लॉन्च होते हैं और कितनी देर में होते हैं। तो एक इंस्टेंस तो लॉन्च हो चुका है, एक सिर तो निकल आया रावण का। दूसरा सिर और देखना है दूसरा आएगा या नहीं, क्योंकि मैंने डिजायर्ड कैपेसिटी कितनी ली थी, 2 की ली थी। तो दे मस्ट बी 2 इंस्टेंसेस दैट मस्ट लॉन्च, है ना, क्योंकि रिक्वायर्ड कैपेसिटी कितनी थी, 2 की थी। तो होपफुली शायद 60 सेकेंड्स का जो टाइम लिया है हमने, वो हमारा वो हेल्थ इनके स्टेटस चेक के लिए है। ऑटोमेटिकली अगर आप इस सिस्टम पे लॉगिन करते हो उस सेम पासवर्ड से, तो आपको वही सेम सिस्टम जिसके अंदर server1.txt फाइल थी, वो एज इट इज आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करके देखना क्या दूसरा इंस्टेंस लॉन्च हुआ। तो शायद 300 सेकेंड्स में ये सारे स्टेटस चेक करेगा। करना एक बार और रिफ्रेश। होपफुली अब तो टाइम हो गया, अभी भी नहीं हुआ। ओके, एक बार ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर जाकर के देखना क्या शो कर रहा है। और नीचे आना इसमें, हाँ सॉरी, ऊपर जाना है, तो बिल्कुल नीचे ही होगा ऑलमोस्ट। एक्टिविटी में जाकर के देखो जरा। एक इंस्टेंस लॉन्च हुआ है आपका, एन अनहेल्दी इंस्टेंस, और एक इंस्टेंस लॉन्च हो गया। दूसरा क्यों नहीं हुआ? दूसरा भी होना चाहिए।
करो, एक बार ट्राई करो। देयर यू गो, ठीक है, 2 इंस्टेंसेस लॉन्च हो चुके हैं पैरेलली, ठीक। तो शायद वो जो हमने 180 सेकंड का डिले दिया था, दैट मींस हर 180 सेकंड के बाद वो एक मिनिमम एक इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं हम एक टाइम पे, तो वो एक एक इंस्टेंस करके लॉन्च करेगा जब तक कि 2 रिक्वायर्ड ना हो जाए, ठीक है। अब अगर आपको ये सेम चीज स्टॉप करनी है, देन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डिलीट दी ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स। तो आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे जाइए, अदरवाइज आप यहाँ से इंस्टेंस को तो डिलीट कर दोगे लेकिन ऑटोमेटिकली ये रेप्लिकेट होते रहेंगे, और इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट दी ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर यू नीड टू टाइप इन डिलीट, एंड इट विल टेक 30-40 सेकेंड्स लगभग टाइम लेगा, ठीक है। सर सर्वर 1 तो नहीं कभी रेप्लिकेट होगा ना? सर्वर 1 रेप्लिकेट जो नहीं होगा मतलब जो हमने खुद क्रिएट किया था वो क्या नहीं अगर होगा, वो हम डिलीट नहीं होगा, रेप्लिकेट रेप्लिकेट नहीं होगा। जैसे, ठीक है, रेप्लिकेशन हो तो एक्चुअल में उसी से रहा है, मतलब उसके जैसे, हाँ ठीक है, वो उसकी समझ जैसी तो हो रहा है, उसके ही तो सारे रेप्लिकेशंस हैं। ओके सर। और आप EC2 इंस्टेंस पर जाओ, एक बार उस पेज को रिफ्रेश करो, यू विल बी एबल टू सी कि अब दोनों इंस्टेंसेस यहाँ से गायब हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर ही ये दोनों इंस्टेंसेस चालू करे थे। तो जैसे ही ऑटो स्केलिंग ग्रुप मेरा बंद हुआ, वैसे ही सॉरी वैसे ही ये इंस्टेंस भी आपके टर्मिनेटिंग स्टेट में पहुंच गए, ठीक है। देखो एक बार ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाके, ये डिलीट हो गया होगा। सर ऑटो स्केल सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है कि डाउनवर्ड में भी हो सकता है? फॉर एग्जांपल इफ वी डोंट हैव लोड तो वो कम नहीं हो सकते? स्केलिंग का क्या मतलब है? स्केल अप और स्केल डाउन दोनों है ना, तो कम भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट कम करने के लिए हमें दूसरे तरीके फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट हो गया। फिर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस और डिलीट कर दो आप। तो जो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन वाला पेज था, है ना, इसको भी आप डिटैच कर दो, एक्शंस में जाके डिलीट दी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक, डन। और फिर ऑटो स्केलिंग ग्रुप हो जाएगा डिलीट, और लगभग 30 से 40 सेकंड के अंदर डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज देख ली कि किस तरीके से हम लोग ऑटो स्केल अप कर सकते हैं अगर हमारे पास लोड ज्यादा बढ़ता है, या हम चाहते हैं हमारे मल्टीपल इंस्टेंसेस आए। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं, या तो मैं ऑटो स्केलिंग कर सकता हूँ जब मेरा लोड ज्यादा बढ़े उस केस में, या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मेरा सिस्टम अनहेल्दी स्टेट में पहुंच जाए तब मैं अपने सिस्टम को लॉन्च कर लूँ, ताकि ऐसा ना हो कि कोई यूजर मेरे सर्वर तक पहुंचना चाहे और मैं, यानी वो सर्वर, जिस सर्वर पर मैंने वो चीज इंस्टॉल करी है, वो सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अनहेल्दी स्टेट में पहुंच गया, ठीक है, हैंग हो गया किसी रीजन से, या शट डाउन ही हो गया। तो ऐसे केस में आई नीड एन ऑटो स्केलिंग। अब ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब आप इंस्टेंसेस पे जाकर देखोगे, आपके ये सारे इंस्टेंस टर्मिनेट हो चुके हैं और कोई नया इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। सो विद दिस वे बेसिकली यू कैन एक्चुअली लॉन्च द इंस्टेंस and you can create the instance, you can auto scale the instances depending on the type of condition that you are going to implement it। और अगर आप चाहते हो इसको एक लोड बैलेंसर से कनेक्ट करना, तो आपको लोड बैलेंसर से कनेक्ट करने के बाद ऑटो स्केलिंग ग्रुप के बाद एक लोड बैलेंसर लगा दोगे, ताकि आपका लोड सॉरी उसके पहले लगा दोगे ताकि आप अपने लोड को भी बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और मेरे में तो ये अभी कुछ दिखाएगा नहीं, क्योंकि मेरे में तो शायद क्रिएट ही नहीं हुए थे, है ना, अपडेटिंग कैपेसिटी आ रहा है। तो ठीक है, फिर एक बार देख लेते हैं कि इंस्टेंसेस मेरे रन हो रहे हैं या नहीं। नो इंस्टेंसेस रनिंग इवन दो इट वाज स्टॉप। तो एक काम करते हैं, फटाफट से हम टर्मिनेट कर देते हैं इंस्टेंसेस को। आपने भी अगर ये काम कर लिया है तो सबसे पहली चीज आप अपने इंस्टेंस को टर्मिनेट करो,
और इंस्टेंस को टर्मिनेट करने के बाद यू नीड टू गो टू दी ऑटो स्केलिंग ग्रुप और आपको इसको डिलीट कर देना है। और डिलीट करने में ऑब्वियसली जैसे कुछ टाइम लगेगा, और पैरेलली वी कैन आल्सो डिलीट दी लॉन्चिंग कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शंस में जाके वी कैन डिलीट दी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस, क्लिक ऑन डिलीट। ठीक, ये डिलीट हो गया। ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी थोड़ी देर में डिलीट हो जाएगा। मीनवाइल सिंस इट इज डिलीटेड नाउ, ठीक है, अब हमें एक चीज और डिलीट करनी है। यू कैन सी देयर इज एन इमेज, Amazon मशीन इमेज विद द नेम ऑफ AMI ID, ये है ना जो सर्वर 1 इमेज नाम से मैंने बनाया था, तो उसको भी डिलीट करना है। उसको डिलीट करने के लिए अगर आपका ये पेज क्लोज हो गया है तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप EC2 डैशबोर्ड पे जाओगे, यहाँ पर आप इमेजेस में जाओगे और इमेजेस सेक्शन के अंदर एक ऑप्शन है AMIs। ठीक है, तो AMIs पे क्लिक करोगे आप तो आप इस पेज पर आ जाओगे और आपको यहाँ पर एक्शंस में जाके इसको करना है डी रजिस्टर। डी रजिस्टर का मतलब है आपकी जो इमेज बनी है सिस्टम की उसको आपने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब आपके पास कोई भी इमेज नहीं है। अब अगर आप अपने खुद के अकाउंट से भी यूज कर रहे होगे तो आपको इसका कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। होपफुली ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आप सब लोगों को। योगेश इज आस्किंग सर, मैंने जो इंस्टेंस ऑटो स्केलिंग में बने हैं उन पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, एरर दे रहा है। योगेश, स्टार्टिंग में मेरे सिस्टम में भी एरर आ रही थी, आपने आप देखा होगा ध्यान से, है ना, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो कनेक्ट हो पाया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अमेजोन पर कुछ लोड ज्यादा है या कोई और पर्टिकुलर रीजन है, कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज है, उसकी बेसिस पे हो सकता है नहीं शायद सर, वो इंस्टांसेस वगैरह सब बन गए हैं, मतलब जो जहाँ पे अपने को पासवर्ड भरना होता है ना, उससे पहले एरर आ रहा है कि रिमोट डेस्कटॉप कैंट कनेक्ट टू द रिमोट कंप्यूटर फॉर वन ऑफ दीज रीजंस। अच्छा, तो रिमोट आपने आपने access tool ऑटो server स्केल, is not enabled. समझ गया मैं, Remote computer is turned off. Remote ठीक ठीक computer ठीक। is not आप available मुझे on the आप network. मुझे एक बात बताओ कि ऐसा क्या कुछ एरर आपने, आ रहा है। हाँ ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आपने उसमें वो की सेम की पेयर यूज करा था जो हमने चूज करा है? जैसे मैंने अपने केस में लिया था S1.pem, आपने भी सेम की पेयर कस्टम लिया था? कस्टम की पेयर मतलब बनाया था सर मैंने। कस्टम की पेयर बनाया था, वो सेम की पेयर नहीं चूज करा आपने? किया एक बार चेक कि करो कि, क्योंकि आप सेम की पेयर चूज करोगे, क्योंकि एक्चुअली है क्या, द प्रॉब्लम इज कि आपने एक की पेयर चूज करा है और उस की पेयर को चूज करने के पहले आपने एक इमेज चूज करी है, क्योंकि आपने सिस्टम को रेप्लिकेट करा है यूजिंग एन इमेज। तो उस इमेज में जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स इस की पेयर से मैच होने चाहिए थे। ठीक है, अब चूंकि आपने की अगर एक पेयर कस्टम सेम है सर, की पेयर तो मैंने सेम ही चूज किया सर। की पेयर सेम है तो फिर नहीं होना चाहिए, तो फिर कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन शेयर करो एक बार सर। हाँ करो, एक सेकंड में आपको होस्ट बनाया था। तो ये तीन चीजें कर लेना आप सब लोग जो भी ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। सबसे पहले ऑटो स्केलिंग ग्रुप को डिलीट करना है, फिर आपको लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करनी है और आपको इमेज भी डिलीट करनी है। ठीक है, ये तीन चीज कर लेना, अदरवाइज आपके क्रेडिट्स अननेसेसरी वेस्ट हो जाएंगे। हाँ, लेट मी गो टू दी योगेश सिंगला को मैं बना दे रहा हूँ होस्ट। ठीक है, यू आर को होस्ट नाउ एंड यू कैन शेयर द स्क्रीन योगेश। सर डिसेबल एक बार अपनी स्क्रीन वो कर दो सर। हो रही है सर विजिबल? हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट। कौन सी स्क्रीन विजिबल है सर आपको? अभी तो ये आ रहा है, हाँ आ गया, आ गया, ठीक है। हाँ जी सर, ये देखो सर, इंस्टांसेस रनिंग भी हैं सर, और यहाँ पे मैंने सबसे की लास्ट में पेयर की भी। पेयर पे जाओ, कस्टम पेयर 1। ठीक है, इसका तो कोई सेम। दिक्कत नहीं सर, सिक्योरिटी ग्रुप का। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप आपने चेंज कर रखा है तो कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप आपने चेंज कर लिया। अब आप एक काम करो, आपको सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करना है ना, तो आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाओ, वहां पर एडिट में जाओ और एडिट में जाने के बाद इसको सिक्योरिटी ग्रुप चेंज कर लो, सबसे नीचे ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स, पहले वाले पे। हाँ, ये बोला सर। हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप एडिट करके देखो। लवलीन शर्मा, क्लास लेते लेते आप कहीं टहल रहे हो क्या बाहर?
यहाँ पे तो नहीं आ रहा सर। सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करने का ऑप्शन नहीं, नहीं क्लिक नहीं करना भाई, एडिट का नहीं ऑप्शन सर, नहीं आ ये रहा। तो नहीं सर। ओके, एक काम करो, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के नीचे लिखा आ रहा है सिक्योरिटी ग्रुप्स, इस पे क्लिक करना। नेटवर्क एंड सिक्योरिटी ग्रुप में सिक्योरिटी ग्रुप्स। और यहाँ पे ऑटो स्केलिंग आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे काम करो, आप इंस्टेंस पर जाओ, और पहले वाले इंस्टेंस पर क्लिक करो। इसमें सिक्योरिटी पे जाना, सिक्योरिटी ग्रुप्स। ओके, वी कैन एक्चुअली चेंज द सिक्योरिटी ग्रुप, वी कैन अपडेट द सिक्योरिटी ग्रुप, बट सिक्योरिटी ग्रुप जो बन चुका है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो या तो आप एक काम कर सकते हो, आपने एक दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करा है ना, हाँ जी सर। लेकिन नहीं करोगे, उससे भी नहीं होगा, ठीक है। उससे भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने इमेज बनाई है फर्स्ट इंस्टेंस की, और आपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप में चूज करा है ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप। तो इन दोनों के सिक्योरिटी ग्रुप सेम होने चाहिए, जिसकी आप इमेज ले रहे हो प्लस जो आप सिक्योरिटी ग्रुप में ऑटो स्केलिंग में ले रहे हो, ये दोनों सिक्योरिटी ग्रुप सेम होने चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू लॉग इन, ठीक है। तो चूंकि आपने दोनों ओके अलग सर। अलग चूज करे हैं, इसलिए तो आप एक काम ये कर सकते हो कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप इस वाले को डिलीट करके दूसरा बना लो, और उसमें ऑटो स्केलिंग ग्रुप 1, ये जो सॉरी क्या लिया था हमने, सिक्योरिटी ग्रुप 1 लॉन्च हाँ विजर्ड जी 1, सर। वो वाला चूज कर लेना, क्योंकि आपने उसकी इमेज बना रखी है ना। ओके इसको सर। डिलीट करके आप एक दूसरा यही सेम प्रोसेस करो, और उसमें सिक्योरिटी ग्रुप ऑटो स्केलिंग ना करके आप वो वाला चूज कर लेना, लॉन्च विजर्ड 1 वाला, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू। एग्जिस्टिंग में नहीं कर सकते हम? एग्जिस्टिंग में नीचे कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग में हम अपडेट कर सकते हैं रूल्स, ठीक है, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। कोई सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, सिक्योरिटी ग्रुप आईडी फिक्स हो गई, ठीक है। अब हम उसके सिक्योरिटी ग्रुप के रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप क्लिक करो सिक्योरिटी ग्रुप पे, किसी में भी सिक्योरिटी कर लो, ग्रुप्स पे। नहीं किसी में भी कर लो, नहीं वाले वगैरह। ठीक है। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आता है, एडिट इनबाउंड रूल्स है ना, तो आप एडिट कर सकते हो। बट ये जो सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी है, ये जो सिक्योरिटी ग्रुप आईडी है ना, ये सिक्योरिटी ग्रुप यस। आईडी आपकी चेंज नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर रूल्स को आप ऐड या मॉडिफाई कर सकते हो कभी भी, ठीक है। यू कैन ऐड n नंबर ऑफ रूल्स, लेकिन इसको अपडेट नहीं कर सकते आप, ठीक। तो अगर ये अपडेट कर सकते होते तो ऑब्वियसली आप उस सिस्टम पे लॉगिन कर पाते, बट सिंस यू कैन नॉट डू दैट, तो आपके पास इसको कनेक्ट करने का कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप को डिलीट कर दो और एक दूसरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करो, और फिर वहां पर सेम सिक्योरिटी ग्रुप चूज करके फिर यू विल बी एबल टू गेट द ऑटो स्केलिंग डन। ओके सर। ठीक है, ऑल राइट। यस सर। तो ठीक है, फिर अभी हमारा ये काम हो चुका पूरा। लेट मी शेयर द स्क्रीन वंस अगेन। तो ध्यान से जब आप ये सारा काम कर लो, आपको 3 चीजें करनी है। यू नीड टू डिलीट द ऑटो स्केलिंग ग्रुप, you need to delete the launch configurations, and you need to delete the machine image, क्योंकि तीनों ही चीजें बेसिकली आपकी स्पेस प्लस क्या कहते हैं कॉस्ट इनकर करेंगी, है ना। तो अगर सर इमेज भी करती है? इमेज आपका 30 GB का इंस्टेंस है ना, तो 30 GB की स्टोरेज स्पेस ले रही है, ऑल्दो 5 GB तक हमारा स्टोरेज स्पेस फ्री है। बट अगर 5 GB से ज्यादा हो गया, आपने सपोज 10 20 50 इमेज कर ली, या आपने 30 GB की जगह सर 5 GB फ्री है तो 30 GB में तो पैसे लगेंगे। ऐसे लगेंगे, लेकिन 30 GB का इंस्टेंस हमारा फ्री है ना, एक इंस्टेंस के साथ अगर आपने कोई भी इंस्टेंस कनेक्ट कराया तो 30 GB तक का इंस्टेंस आपका ब्लॉक स्टोरेज वाली कैपेसिटी फ्री है। ओके। EBS जो स्टोरेज है ना, जो हमारा रूट वॉल्यूम कनेक्ट होता है, वो 30 GB तक फ्री है उस इंस्टेंस के साथ, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इट विल बी चार्जिंग, आपको चार्ज देना पड़ेगा। अभी आपको टेंशन नहीं है क्योंकि आपके केवल क्रेडिट्स कटेंगे, बट सिंस यू कैन यूज एंड यूटिलाइज द क्रेडिट्स एज पर योर ओन चॉइस, तो आप उसको अपने एक फिक्स जिस भी काम के लिए आप उसको यूज करना चाहते हो, आप उसके लिए संभाल के रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही आप काम कर लें तुरंत आप उन चीजों को डीरजिस्टर कर लें, सो दैट यू विल नॉट बी चार्ज्ड फॉर एनी थिंग्स। Sir, EMI and snapshot is one and the same thing?